Hello everyone, my name is Shamanawat and I welcome all of you once again in lecture number 2 of number theory number system. In this lecture, we are going to discuss divisibility rule and remainder also for some special numbers. So let's get started. Now, here I have first divisibility rule for you, that's for 2, 4, 8, 16 or so. Okay, ये क्या इनका आपस में क्या relation है? How do they work? Let's see. So we can say number is divisible by 2 if it is ending with 0, 2, 4, 6 or 8. In general, in a common term, we can say that a number should be an even number, right? And the last digit of the number should be divisible by 2. It should be 0 or divisible by 2. The last digit of the number should be either 0 or divisible by 2. लिख दूं क्या इसको? The last digit of number should be either 0 or divisible by. So we don't have to check the entire number. We just need to check the last digit of the number. Divisible by 2. Okay. I hope you are using pen paper when you are watching these lectures. Right. Okay. Now if you have a number like 2, 4, 6, तो यहाँ पे last digit क्या है? 6. 6 is divisible by 2. So we can say the number is divisible by 2. अब इसका 4 से क्या relation है? देखो 4 is what? 4 is 2 square, right? 2 square. So here for 4, divisibility of 4 we say last 2 digit of the number should be either 0 or divisible by 4. Okay, so last 2 digit number. So example, if you have 1, 3, 1, 6, then we only check for what? 1, 6. And if we divide 1, 6, it's divisible by 4. So entire number is also divisible by 4. Now, here's one more thing which we can add on here. Along with the divisibility rule of 4, we can also say we can check the remainder. You know why? You know how? So if you have a number, let's say 629. Now we need to find out what happens, or 1629. चलो ऐसा करते हैं 1629. What is the remainder when you divide this number by 4? What is the remainder when you divide? What is the remainder when you divide this number by 4? So remainder finds, only to find the remainder, quotient thing, only to find the remainder, we can use the divisibility rule of 4. We can use the divisibility of 4 itself. Okay. So हम क्या करेंगे? Last 2 digits लेंगे. So we will not divide the entire number. We will only check the last 2 digits number. So last 2 digits number, if we divide by 4, you know that is 4 sevens are 28, and then what remains is 1. It means if you divide the entire number, no matter whether it is 1629 or 22629, if you check for 29, it gives you remainder as 1. So entire number, if you divide that by 4, that will also give you remainder as 1. Okay. So इसको सिर्फ divisibility rule ही नहीं, but remainder find करने के लिए भी use कर सकते हो. Keep this in mind. So you can use this not for only divisibility rule, but also to find the remainder when divided by 4. और ऐसा सब केस में नहीं होता है. Some special cases are there which I want to highlight for you. Now, same for 8. Now, if you look at the divisibility of 8, 8 is nothing but what? 2 cube. So if 2 cube मतलब last 3 digits. तो यहाँ क्या देखेंगे हम लोग? Last 3 digits. Okay? ऐसा याद रखने के लिए, ऐसा 2 cube के कारण last 3 digits है, ऐसा कुछ नहीं है. Just to remember. So if you see last 3 digits, if last digit of the number is divisible by 8, or we can say is 0 or divisible by 8, last 3 digits, तो भी हम क्या बोलेंगे? The number is divisible by 8. Okay. Now again, if you take some number, let's say 2, 4, 6, 0, 8, let's say. Okay. Now we will see whether this number is divisible by 8. So what are we going to do? We are going to take the last 3 digits, which is 6, 0, 8. Doesn't matter to us whether the remaining
remaining digits are 2, 4, 3, 4, 1, 2, 4, doesn't matter. If you want to check a number is divisible by 8 or not, we will only focus on last 3 digits. Okay. Now, if we divide this by 8, here you have 7s are 56. Now, remainder is 4. No, sorry, not remainder, but you get 4. 8, it is divisible, 48. So, this number is also divisible by 8. थोड़ा चेंज करते हैं. Let's say if I have 1, 3, 2, 6, 0, 4. Okay. In that case, first we'll check whether the number is divisible by 8. And if it is not divisible by 8, then what should be the remainder when you divide this number by 8? आप यहाँ पे, as I said earlier, divisibility rule भी use कर सकते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूँ, it's not for all the digits we are checking, all the numbers we are going to learn the divisibility rule. It is applicable for a couple of them. तो उन couple of them में याद रखना. तो 4 के लिए काम करेगा, 8 के लिए भी काम करेगा. So keep marking them that divisibility rule of 4 also works to find out when the number is divisible by 4. मैं इसका यूज करने वाला हूँ. मैं फिर से बोलता हूँ, you will not get direct question on this concept, but we are going to use this concept indirect. जैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में यूज करने वाले हैं इसको, तो साइक्लिसिटी में भी यूज करने वाले हैं. तो समझो ध्यान से. ओके, दिस इज फॉर जनरल नॉलेज इन क्वांट. सो divisible by 8, we check last 3 digits. Now, last 3 digits of this 604. Now, if you divide 604 by 8, what you get here? Right? 4, 4. 5 is 40. What is left here? 4. It means when you divide the entire number also by 4, you are going to get the remainder as, sorry, here. When you're going to get the entire number also by 8, then also you're going to get the remainder as what? 4. Did you get this? So, to find the remainder of any number when divided by 8, you only have to take care of last 3 digits. बाकी के digits क्या हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Clear है? Okay. Don't skip it. Don't skip it. Don't skip. Please watch it completely. Please go through it completely. ये बहुत important है. मैं फिर से बोलता हूँ बहुत important है, because जब मैं शॉर्टकट में यूज करूंगा तो फिर बोलना मत कि सर ये कहाँ से हो गया. या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ let's see whether a number is divisible by 16. So we'll check what? Last 4 digits, right? So last 4 digits of the number should be either 0, 0, 0, 0, or it could be divisible by 16. ये ध्यान रखना. Okay? And this also works to find out the remainder. हालांकि आप बोलोगे कि यार 4 digit करना है, 4 digits को 16 से divide करना है, मतलब it's as good as a question in itself. तो हाँ है ऐसा, क्या कर सकते हैं. So for 16 we'll say what? Last 4 digits. फिर से रिवाइज करते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा? For 2 we'll check the last digit. Okay? For 2 we'll check what? Last digit. For 3, not for 3. For 4 we check what? Last 2 digits. We'll check what? Last 2 digits. For 8 we check what? Last 3 digits. We check what? Last 3 digits. For 16 we check what? Last 4 digits. We check for what? Last 4 digits. Okay? So ये इनके आसपास में रिलेशन है. रिलेशन सिंपल है. यहाँ पे 2:1 है, 2:2 है, 2:3 है, 2:4 है. और पता है ये सेम चीज ना, सेम चीज एप्लीकेबल होती है. लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट दैट. 5, 25 and 125. You will find similarity here as well. For 5 we'll say the last digit should be 0 or 5. या फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? The last digit should be 0 or divisible by 5. अब एक ही digit है जो divisible by 5 है. But can we say that? Yes. So for 5, if we can say that only check the last digit. Then you know for 25 we say, which is 5 square, we say what? Check last 2 digits. Last 2 digits. This is just to remember आपको
याद रखने में easy हो, that's why I'm making this relation. Last two digits. And 125, we'll check what? 125 is nothing but 5 cube. So we'll say you need to check what? Last, बोलो क्या? Last 3 digits. Okay. So for 5, we'll say the last digit should be either 0 or divisible by 5. For 25, we say last 2 digits should be 0 or divisible by 25. And for 125, we say last 3 digits should be 0, 0, 0 or divisible by 125. और in case में भी आप you can mark it. इस case में भी आप you can use the same divisibility rule to find the remainder as well. You can use the same divisibility rule to find the remainder as well. मेरा क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? Suppose if we take a number like 1, 2, 6, 5 or let's say 3, 2, 1, 2, 6, 5. Then if it is divided by 25, we need to find the remainder. 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 इस पे ध्यान देना है हमने. Okay. So what you will do? 25 का divisibility क्या बोलता है? Last 2 digit बोलता है, right? 65. अब 65 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बोलो? 25 2s are 50. The remainder is what? 15. It means if you divide the entire number also by 25, आप चेक करके देखना पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करना, you are going to get the same remainder here. Okay, so that's what I mean. Yeah? बट मैं फिर से बोलता हूँ ये सब डिविजिबिलिटी रूल में एप्लीकेबल नहीं है. जहां एप्लीकेबल है मैं आपको टिक मार्क करके दे रहा हूँ. प्लीज आप लोग भी वहां टिक मार्क कर लेना. पेन पेपर लेके ये इन लेक्चर्स को आप सुनना, समझना, पढ़ना, ताकि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सके. देयर इज नथिंग बेटर देन हैविंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स. ट्रस्ट मी. Okay, so I hope 5, 25 and 125 is clear to you, divisibility rule, and what if you want to find the remainder. Now let's look at the divisibility of 3 and 9. So 3 ka divisibility and 9 ka divisibility is almost same. 3 says sum of the digits of number should be divisible by 3. 9 ka bhi yahi hai, sum of the digits of the given number should be divisible by 9. Are you getting this? Are you getting this? So let's take a number, or again these two divisibility you can use to find the remainder as well. Okay, so बिल्कुल आप use कर सकते हो. I hope you are making notes here. Now, as we have another one number like 2, 7, 2, 9. So what you can see is if you add all of them, you get what? 18. 18 is divisible by 3. Then the number is also divisible by 3. You can take bigger number as well. Let's say 2, 3, 4, 8, 2, 9, 6, 0. Now let's check whether this number is divisible by 3. So what are we going to do? We are going to add, right? So 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 8, 17. 17 plus 2, 19, 19 plus 2, 28. 28 plus 6 is 34, plus 0 is 34. So 34, you got what? Sum of digits as 34, right? Now is 34 divisible by 3? नहीं है. नहीं है ना? You say 3 ones are 3, and then what you have 0 here, then 4 here, then what you get? My handwriting. Now 3 ones are 3 again. Here, what remainder is how much? 1. So we say this number is not divisible by 3. But if we try to divide this by 3, the remainder will be 1. Okay. So same divisibility rule आप remainder find out करने के लिए भी use कर सकते हैं. Yeah? क्या ये हर divisibility rule के लिए applicable है? No. There are some unique ones, and we are marking them कि इसका divisibility rule of this digit can also work to find out the remainder when you divide another number by these numbers. Okay? अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर सकते हो, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है. It's a shortcut. हाँ, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ मैं. So what you can do is you can have this number, and you can see if the digit is divisible by 3 or sum of the digit is divisible by 3. आप उनको skip कर सकते हो, उनको cancel कर सकते हो. जैसे now when I try to
लुक इनटू दिस, ये 3 गया, 6 गया, 9 भी गया, डिजिट्स, हाँ डिजिट्स, डिविजिबल बाय 3, राइट। अच्छा बोलो 2 + 4 कितना, 6, वो भी गया। 8 + 2 कितना, 10, नहीं डिविजिबल नहीं है, तो उससे और यही बचा सिर्फ। सो व्हाट यू विल से, 8 + 2 10, 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा बोलो, 3 3 जा 9, कितना बचा, रिमाइंडर 1। सो यू विल से दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, बट इफ यू ट्राई टू डिवाइड दिस बाय 3 यू विल गेट रिमाइंडर एज 1। आई होप दैट्स क्लियर। ये कैंसिल कैसे किया वो भी समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, डोंट वरी, बट इस टाइम एग्जांपल दूंगा मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के साथ में। इज दिस पार्ट क्लियर? मैं फिर से बोलता हूँ, देखो ये डिविजिबिलिटी रूल है, दिस इज नथिंग टू डू, इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वोशंट। क्वोशंट क्या होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ चेक कर रहे हो कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर क्या है, क्वोशंट क्या है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, divisibility rule has no relation to find the quotient here. Okay, now divisibility of 9. So divisibility of 9 also says that if the number, sum of digits of the number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. Example हमारे सामने है 864. If you add all of them, what you get is 18. 18 is divisible by 9. Correct. Now if you have this अगर ऐसा है, कोई और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट्स से 62958298 059. Let's say this is a number. Now we need to see whether this number is divisible by 9 or not. पहला तरीका तो क्या है, जो बेसिक जो हर जगह आपको मिलेगा, सम ऑफ डिजिट्स। और हमारा तरीका क्या है, व्हाट इज आवर मेथड, सेम ही मेथड है, बट हम लोग इतने बड़े नंबर को ऐड कौन करे, कौन डिजिट्स को ऐड करेगा। व्हाट विल डू इज वी कैन कैंसल आउट डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 9। अब 9 से डिविजिबल डिजिट सिर्फ एक ही है, 9 खुद, राइट। एंड सम ऑफ द डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 9, उनको कैंसिल करते जाओ, उनकी जरूरत नहीं है आपको, उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो रूल तो यही बोलता है कि सम करो, बट मैं बोलता हूं कि शॉर्टकट लगाओ, है ना। तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में काम करेगा। जैसे लेट मी गेट रिड ऑफ द 9s फर्स्ट, राइट, देन लेट्स ऐड। सो यहाँ पे हुआ, देखो मैं पिक करता हूँ, आपको आप भी पिक कर सकते हो, बट जैसे देखो यहाँ पे 5 + 5 10, 10 + 8 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9। सो 5 + 5 5 8 मैंने कैंसिल कर दिया। और आपको कुछ दिख रहा है क्या, लेट्स से 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + ये वाला 8 18, 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो हम लोग इस 6 + 2 + 2 + 8 को भी कैंसिल कर देते हैं। अब क्या यहाँ पे कुछ और बचा है, सिर्फ 0 बचा है, और बेचारा वो तो छोटा सा नन्हा सा 0 है, उसकी तो कुछ गलती नहीं, क्यों कैंसिल करना, रहने दो उसको जैसा है। But do you have any other digit left? No. So what you will say in this case, that this number is divisible by 9. This number is divisible by 9. That means if you divide this number by 9, you will get remainder as 0. Will it always happen? Not necessary. कुछ और नंबर लेके देखें। Let's say 3 2 6 8 4 5 6 9 2 5 8 6 4. Okay, now I want to see if I divide this by 9, then is it divisible by 9? If not, then what is the remainder? चलो चेक करते हैं। Now, again, ये तो काफी लंबा बड़ा नंबर है ना, it's a big number, huge number, right? So you can get rid of the 9 and numbers, sum of digits which are I'm sorry, sum of digits which are divisible by 9. और वो जो डिजिट्स आप पिक करोगे वो सीक्वेंस में हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, यू कैन पिक रैंडम ऑल्सो। तो पहले तो 9 से लेट्स गेट रिड ऑफ 9, तो एक ही 9 है। नाउ यू ऑल्सो हैव 6 + 3 9, कैंसिल कर दो। डिड यू गेट इट? सो 6 and 3 नॉट नेसेसरी टू बी इन सीक्वेंस, वन आफ्टर द अदर, ऐसा कंपल्शन नहीं है। यू कैन पिक अप रैंडम फ्रॉम दिस नंबर, डिजिट्स फ्रॉम दिस नंबर, एंड सी इफ द कॉम्बिनेशन इज डिविजिबल बाय 9, उनको भी कैंसिल कर दो। ओके,
इस तरह से आपको पूरे डिजिट्स को ऐड नहीं करना पड़ेगा. आई होप दिस इज फाइन. नाउ सिमिलरली यू ऑल्सो हैव हियर 5 plus 5 plus 8. 5 plus 5 10, 10 plus 8 18, divisible by 9, उड़ा दो. Right, you also have 6 plus 4 10, 10 plus 8 18, उड़ा दो. बचा कौन? 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 2 14. और कोई बचा देखो, बस यही बचा ना. 14 if you divide by 9, इतना को कर सकते हो. हाँ, so it become quite shorter, right? It become quite shorter, right? So if you divide, what you will get? 9 ones are 9. कितना बचेगा? 5. So remainder is how much? 5. It means if you divide the entire number also by 9, you will have a remainder 5. इसे हमें ध्यान में रखना है बस. Correct? Okay. Let's see what more do we have. 5, 25, 125 अपन ने कर लिया. 6. Okay. 6 is a composite number और ये composition है 2 and 3 का. 2 and 3 का. तो हम लोग यहाँ बोलते हैं if a number is divisible by 2 as well as 3, then it is also divisible by 6. ऐसा आप किसी composite number में बोल सकते हो. आप 15 में भी same बोल सकते हो. 15 is what? 3 5s. So a number, if it is divisible by 3 as well as 5, then it is also divisible by 15. क्या इसमें रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द सेम डिविजिबिलिटी रूल? आंसर इज नो. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी रिमाइंडर फाइंड करने के लिए नहीं काम करेगा. ओके, नाउ लेट्स टेक सम नंबर, से 2 3 4 5 6. ओके, अब इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है? 6, इवन है. इज इट डिविजिबल बाय 3? चेक कर लेते हैं. 2 से डिविजिबल है, किया. अब 3 का चेक कर रहे हैं. उसको चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, उड़ा दो डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 3 और सम विच आर डिविजिबल बाय 3. जैसे 4 and 6 को भी उड़ा दो, बचा कितना? 5. इज 5 डिविजिबल बाय 3? नो. सो इज दिस होल नंबर डिविजिबल बाय 6? नो, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3, then only we can say it is divisible by 6. Got it? Same 15, 3 into 5. So composite number में ऐसा बन जाता है. तो जिन numbers का आपको divisibility पता है, अगर वो उनकी composition से बन रहा है, तो आप ये लगा लो हिसाब से कि it should be divisible by 3 as well as by 5. Okay? I hope that's not confusing to you. Yeah? So 6, 15 ऐसे आप कर सकते हो. Even 12 का भी कर सकते हो. You can have 4 into 3. उसका कर सकते हो. Okay? अच्छा, 10, last digit should be 0. Okay? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत बार हम शॉर्टकट्स में यूज करते हैं, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट काफी बार यूज होता है. सो डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ये क्या बोलता है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. क्या ये हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं. इसको मार्क कर लो, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. आप इससे रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम्पल एक यहाँ पे है, एक हम लोग लेते हैं, पिक करते हैं. चलो एक अपना नंबर लेते हैं अपन, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेते हैं. हाँ, सो लेट्स से 5 6 8 2 9 0 4. ओके, नाउ लेट्स सी वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. सो व्हाट डू वी डू? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट. तो आप कहाँ से शुरू करोगे? हमेशा राइट मोस्ट डिजिट से शुरू करना. 11 के केस में राइट मोस्ट डिजिट से शुरू करना, हमेशा रैंडम नहीं करना. राइट मोस्ट से स्टार्ट करना, ऑल्टरनेट्स को ऐड करना. मतलब 4 + 9 13, 13 + 8 is 21, 21 + 5 is 26. तो हमारे पास आया 26. राइट, चेक कर लें एक बार और. यहाँ पे हो गया 17, 17 + 4 26. करेक्ट. अब बचे हुए ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करो. 0 + 2 2 + 6 8 -8. ये कितना हुआ? डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलो, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18. इज 18 अ 0?
No, 18 is 18. No, it's not 0. Is 18 divisible by 11? No. इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है. ओके. अगला इसके ऊपर टॉप अप क्वेश्चन क्या? ओके, इफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 and still if you try to divide this by 11, if you try to divide this number by 11, what will be the remainder? ये रिमाइंडर वही होगा जो 18 को 11 से डिवाइड करके होगा, जो 18 को 11 से डिवाइड करके होगा. सो 18 if you say here, this is 11, 11 you say here. So remainder कितना हुआ? 7. Remainder कितना हुआ बोलो? 7. That means if you divide this entire number also by 11, you will get remainder as 7. आप divide करके चेक कर सकते हैं. Now let's take this number. Let's take this number. 84537682. ये नंबर. Now we need to see whether this number is divisible by 11 or not. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बोलो? Again, we start from the rightmost digit and keep on adding the alternate digits. So this is 2 plus 6 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 plus 5 is 16. 11 plus 5 is what? 16. Now, check the remaining alternates. So, 8 plus 7 is 15. 15 plus 4 is 19. 19 plus 8 is 27. Subtraction. बताओ subtraction कितना हुआ? Now here you will get what? Minus 11. Sorry. Yes, minus 11. You get what? Minus 11. So ठीक है, नेगेटिव आया तो भी चलेगा. इस आप इसका डिफरेंस जो है ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना. आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू लेना. So is this absolute value divisible by 11? Yes. Then can we say this entire number also divisible by 11? Yes. Okay. Let's try one more number. एक और number try करते हैं. Let's take this number. Let's say this is 76437682 ऐसा लेते हैं. Okay. Now let's try with this number. Is this? I'm sorry. Let's try this number. Let's see. Is this number divisible by 11? Start from rightmost digit. Okay. हमेशा rightmost से start करना. उसको पहले लिखना. बहुत important है. 2 plus 6 8. 8 plus 3 11. 11 plus 6 is 17. तो पहला आ गया आपका 17. Okay. Now remaining alternate 8 plus 7 15. 15 plus 4 19. 19 plus 7 19 plus 7 26. So minus किया 26. Okay. Now what is the difference? Here difference is minus 9. Is this divisible by 11? No. This number is not divisible by 11. This number was divisible by 11. ये नंबर भी 11 से divisible नहीं था यहाँ. ओके. रिमाइंडर कितना था? 7 हमने निकाला था. चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि this number when divide by 11, it is not divisible by 11. But if you divide, still try to divide this by 11, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या कभी भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? नहीं. एक्चुअल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता. यहाँ पे -9 है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे? कभी भी आपके पास ऐसा कंडीशन आ जाता है कि रिमाइंडर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे? हमेशा आप डिवाइजर में से उसको डिफरेंस निकाल लो. देख लो डिवाइजर से वो कितना डिफरेंस है. हाँ. सो डिवाइजर और यहाँ पे उसको जो भी नेगेटिव नंबर है उसको आप ले सकते हो. आपका पॉजिटिव आना चाहिए. नहीं आ रहा पॉजिटिव, एक बार फिर से ट्राई करो. एक बार फिर से डिवाइजर और जो नेगेटिव बचा हुआ है उसको फिर से करो. ओके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर पहले बार में पॉजिटिव नहीं आता है यू कैन अप्लाई द सेम थिंग अगेन. ओके. यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज -9 है. बहुत ईजी है. सो डिवाइजर कौन है यहाँ पे? 11. हम नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है? -9. इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 2. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसका एक और एग्जांपल मैं नहीं दूंगा. आप लोग ट्राई करना इसको और मुझे बताना कि आपको करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ. और इसको आप 11 से डिवाइड करके भी देखना आपका रिमाइंडर 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ओके. आई रिपीट माई सेल्फ. रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर नेगेटिव
हम लोग नहीं ले सकते, नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर पॉजिटिव में ही करना पड़ेगा। अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो आप क्या वहां पे लगा सकते हो, ये वाला कंडीशन लगा सकते हो, डिवाइजर प्लस जो नेगेटिव रिमाइंडर आया वो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ऑलराइट, ऐसा होता है, ठीक है साहब, ओके। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव, ओह वी हैव सम एग्जांपल्स, चलो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। आपको ब्रेक लेना, ब्रेक ले सकते हो 1-2-3 मिनट का, फिर से कंटिन्यू करो उसको, ओके। यू डोंट हैव टू वॉच लेक्चर्स कंटिन्यूसली, थोड़ा ब्रेक लेके करो, आराम से करो, और बहुत भी आराम से मत करना कि एग्जाम ही पास हो जाए, एग्जाम डेट ही निकल जाए, ओके। इतना भी आराम से मत करना। फाइंड द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये जो 4 डिजिट नंबर है इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ कौन है, एक्स एंड वाई, स्मॉलेस्ट करना है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, वेयर एक्स एंड वाई आर डिजिट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो स्मॉलेस्ट रखने के लिए आपको जो बड़ी पोजीशन पे डिजिट है, जैसे यहाँ पे ये है यूनिट, वाई कौन से पोजीशन पे, यूनिट्स प्लेस पे, एक्स कौन से प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे, राइट। सो हंड्रेड्स प्लेस को आपको मिनिमम रखना होगा। अब मिनिमम डिजिट क्या होगा, 0 ही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इफ यू एड दिस 3 + 7, नो, इफ यू एड द डिजिट्स 3 + x + 7 + y, ये बनेगा आपका कितना, 10, x + y यहाँ पे रह गया। अब अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 10 डिवाइड बाय 9, रिमाइंडर कितना होगा, 1। कितना बचा, x + y, ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉलेस्ट हो, ओके। अच्छा, स्मॉलेस्ट सम विच इज डिविजिबल बाय 9 शुड बी 9 इटसेल्फ। अब अगर आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो x और y के केस में, वेयर x शुड बी स्मॉलेस्ट एंड y कैन टेक रेस्ट ऑफ द वैल्यू, तो आप क्या y को 0 ले सकते हो, हाँ आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। 1 + 0, y इज नॉट द राइट लेफ्ट मोस्ट डिजिट। आप देखो किसी भी नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बीच में तो 0 हो सकता है, राइट। तो बचा हुआ लोड किसके ऊपर होगा, y के ऊपर। तो y क्या लेना चाहिए, 8, ओनली देन यू विल गेट सम एज 9, है ना, सोच के देखो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं लेना चाहिए, मैं वो आपको करके बताता हूँ क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे ये 1 + x + y है, टू मेक इट डिविजिबल बाय 9, इसका सम अगर 9 हो तो मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ और y को ले लेता हूँ 7, सो 1 + 1 + 7 इज स्टिल 9, करेक्ट। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा किया तो x के प्लेस पे आया 0, सॉरी x के प्लेस पे आया 1, तो नंबर कैसा दिखने लगेगा पता है आपको, दिखेगा वो 317 और जो हमने यहाँ पे किया उससे नंबर कैसा दिखेगा, 3078। अब भाई आप ही एक बात बताओ यार, इनमें से कौन सा स्मॉलर है, 3078 और 3177? ऑब्वियसली दिस वन। और आपका क्वेश्चन भी यही बोला है कि स्मॉलेस्ट पे ध्यान दो, स्मॉलेस्ट हो गया, राइट। ग्रेटेस्ट होता तो हम एक्स को हायर रखने की कोशिश करते ही। सो what you got, the smallest 4 digit number is 3078, which is in this form and also divisible by 9, right? मस्त है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। एक और देखो, the number this is divisible by 6, which of the following must be true। अब b के बारे में, a + b के बारे में, a के बारे में और इन सब के बारे में कुछ तो दिया हुआ, which of the following must be true। अभी यहाँ पे for a number to be divisible by 6, the number should be first of all an even number। क्या ये इवन नंबर है, बिल्कुल है, बिकॉज इसमें डिफाइंड है, लास्ट डिजिट 2 डिफाइंड है, राइट। एंड सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, सो इवन तो ये अपने आप में है ही। तो हम लोग 6 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक लगाते हैं, 2 एंड 3। 2 वाला चेक हो चुका, 3 वाला बाकी है। बताओ 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, और यही यहाँ पे 4th पॉइंट बोलता है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, राइट। अच्छा ये चेक करें क्या, ये तो समझ में है ना, 4th आपका आंसर है, इसको चेक करें। देखो मैं इसको चेक इसलिए करवाना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पे बोलता है कि a + b इज मल्टीपल ऑफ 3।
मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3 ये एक ही चीज़ है। मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3 ये एक ही चीज़ है, बिल्कुल आपको इसमें स्ट्रेस देने वाली बात नहीं है, करेक्ट? तो ए और बी, सिर्फ ए और बी को भी डिविजिबल बाय 3 रखा तो चलेगा क्या? करके देखते हैं। इफ यू ट्राई टू ऐड द नंबर, जैसे 7 प्लस ए प्लस 5 प्लस बी प्लस 2, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 प्लस 7, सॉरी 7 प्लस 7 ही होगा, बट अब ये 5 प्लस 2 को 7 बोल दिया था मैंने, तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट कैलकुलेट कर लिया। खैर, 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14। नाउ इफ यू डिवाइड दिस बाय 3, तो 14 का स्मॉलर वर्जन क्या हो जाएगा? 14 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 2, तो 2 प्लस ए प्लस बी। तो क्या सिर्फ ए प्लस बी को डिविजिबल, ए प्लस बी का वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 से काम चल जाएगा? देखो, ए प्लस बी का अगर आप मल्टीपल ऑफ 3 लेते हो, लेट्स से 3 लेते हो, 3 ही ले लो चलो, या फिर 6 ले लो। अगर ये 6 हुआ तो 6 प्लस 2 तो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा ना। आर यू गेटिंग दिस? दैट्स व्हाई ये वाला ऑप्शन काम नहीं किया। ओके, क्योंकि बाकी जो गिवन डिजिट्स है उनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ए और बी के डिविजिबिलिटी, ए और ए प्लस बी के वैल्यू का 3 से डिविजिबल होके कोई काम नहीं होने वाला। I mean, it's not going to work, right? Okay, I'll repeat this. When we try to add the value, this digits, then we got 14 plus a plus b. 14 का smaller version when you divide by 3, remainder is what? 2. So basically you got 2 plus a plus b. अगर आपको नहीं करना चाहते हो तो ऐसा नहीं भी करो तो भी चलेगा, आप सिर्फ ये लेके देखना चाहते हो इससे भी देख सकते हो, 14 plus a plus b. So if I take any value which is multiple of 3 as a plus b as per option number 2, is it going to solve our situation? Is it going to make our condition fulfill that the number is divisible by 6? So if I take, let's say, a plus b as 3, this is giving you how much? 17 is not divisible by 3. So only a plus b being multiple of 3 is not making the entire number multiple of 3. Only a plus b being divisible by 3, not making the entire number divisible by 3. That means ये 3 का जो चेक है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। कौन? सेकेंड ऑप्शन। इंटरेस्टिंग है नहीं है बताना मुझे। ओके, इंटरेस्टिंग है। आप फिर से मुझे पता है, देखो आप जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स देखते हैं, यू आर बिगिनर, यू डोंट नो मच मैथ्स, यू हैव मैथ्स से बहुत डिस्टेंस हो गया। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, बट अब मैथ्स है यार। आप बोलो कि सर हमें 6 पैक बनाना है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो तो नहीं हो पाएगा। वी कैन मेक एक्सरसाइज जॉयफुल, फनफुल, बट वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ द पेन। ओके, वो पेन तो लेना पड़ेगा, राइट? सो that's what it is. So basically option number 4 is helping us to clear the check of divisibility of divisible by 3. So 2 का check तो clear है, option number 4 is making us clear the check of divisible by 3. That means option number 4 is the best which solve our condition, solve our situation, right? So this must be true. अगला देखते हैं, next question. A 6-digit number है, ये दिया हुआ है, is divisible by 11. How many pair of A, B possible? How many ordered pair? ये ordered pair का क्या होता है? पहले इसको समझे, बाद में divisibility of 11 को देखेंगे। What is the meaning of ordered pair? Ordered pair मतलब ये होता है कि 1, 2 and 2, 1 are two different values. 1, 2 and 2, 1 are two different values. अगर ये ordered pair नहीं बोलते तो हम लोग 1, 2 और 2, 1 ये एक ही बात होती है। 1 and 2, 2 and 1 एक ही बात होती है। सो ऑर्डर्ड पेयर अगर जहाँ पे दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सीक्वेंस मैटर्स है। अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो आंसर भी उसमें चेंज होगा, राइट? That will be counted as a different possibility if you change the order. So that's what it means by ordered pair. Now, let's look at this. So we have 5, 4, A, 3, B, 2. Now,
Let's start from the rightmost and look at the sum of digits. So यहाँ पे 2 plus 3, 5 plus 4, 9. ठीक है. Divisibility of 11. Then we got minus. अब minus क्या करना है? B plus A plus 5. मतलब ये ऐसा दिखेगा 5 plus A plus B. Correct? Now this should be a number which is either 0 or divisible by 11. Okay? So if you look at this, open the bracket. So 9 minus 5 become 4. 4 minus A plus B ऐसा आया. 4 minus A plus B ऐसा आया. अब एक बात बताओ यार, क्या इसको जीरो, इसका वैल्यू जीरो होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. अगर A प्लस बी अगर इक्वल टू 4 हो गया तो ये जीरो से डिविजिबल हो जाएगा. फिर से बोलता हूँ, अगर A प्लस बी का वैल्यू 4 हुआ, सो 4 माइनस A प्लस बी 0 हो जाएगा. करेक्ट? आई कैन टेक इट दिस साइड. सो एक तो ये हो गया. क्या इन दोनों का डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो सकता है? मतलब -11 हो सकता है. देखो प्लस तो नहीं हो सकता बिकॉज 4 यहाँ पे पॉजिटिव है और A माइनस बी, A प्लस बी नेगेटिव है. सो A प्लस बी पे खेल सकते हो आप. सो क्या ये -4 पॉसिबल है? पॉसिबल है. किस केस में पॉसिबल है? अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और यहाँ पे लेके जाऊँ, सो 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 15. अगर A प्लस बी का वैल्यू 15 हुआ तो भी पॉसिबल है. ठीक है ना? आगे चलते हैं. क्या 4 माइनस A प्लस बी, अभी सॉल्व नहीं है, अभी तो केसेस बना रहे हैं हम लोग. देखो फर्स्ट केस हम ये चेक करेंगे कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड B आर देयर व्हिच आर giving you sum as 4. Next we are checking how many ordered pair of A and B are there which are giving you sum as 15. Next we are checking is, अब ये -22 ये ऐसा करते जा रहा है बिकॉज ये देखो यहाँ पे किया था ना हम लोगों ने 11 का डिविजिबिलिटी पे. सो इवन इफ इट इज -11 इट इज वर्किंग. इवन इफ इट इज -11, सो इट इज डिविजिबल बाय 11. हाँ, सो एब्सोल्यूट डिफरेंस. सो -22 हो सकता है, +22 नहीं हो सकता बिकॉज पॉजिटिव नंबर तो छोटा सा 4 है. सो +22 पॉसिबल नहीं, लेकिन -22 पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है? फिर से देखो, A प्लस बी को उधर लेके जाओ, -22 को इधर लेके जाओ, देखते हैं. सो A प्लस बी, क्या A प्लस बी 4 प्लस 22 मतलब 26 हो सकता है? नहीं हो सकता. ये पॉसिबल नहीं है. इससे पाप हो जाएगा. इट्स अ सिन. क्यों? क्योंकि A and B both are digits. Maximum value A can take is 9. Maximum value B can take is 9. किसी भी 2 digits का sum 18 से ज्यादा नहीं हो सकता. तो क्या 26 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. डू वी हैव टू गो फर्दर टू चेक? नो, ये नहीं हो सकता. तो ये दो चीजें पॉसिबल. ठीक है. A प्लस बी इज 4, A प्लस बी इज 15. चलो A प्लस बी 4 से देखते हैं. अब 4 अगर लगाना है तो कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? आप इसको 0,4 बोल सकते हो, आप इसको 1,3 बोल सकते हो, आप इसको 2,2 बोल सकते हो. ऑर्डर्ड पेयर मतलब आप उसको 3,1 भी बोल सकते हो, मतलब आप इसको 4,0 भी बोल सकते हो. सो हाउ मेनी 1 2 3 4 5. अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि A और B इनमें से कोई भी जीरो नहीं ले सकता है और इट के नॉट टेक एनी स्पेसिफिक वैल्यू? ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज नन ऑफ देम आर एट लेफ्ट एक्सट्रीम. मतलब कहने का, अगर आपका नंबर ऐसा होता है A5 4 3B2, तो A आपका जीरो नहीं ले सकता. A जीरो नहीं ले सकता बिकॉज देन इट विल नॉट बिकम, इट विल नॉट रिमेन 6 डिजिट नंबर. अभी है ना ये 1 2 3 1 2 3, इट बिकम 5 डिजिट नंबर. दैट्स व्हाई ये कंडीशन हमें चेक करना है. तो A एंड B आर इन बिटवीन, इन बिटवीन द डिजिट्स विच आर गिवन. सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. यहाँ पे A और B कोई भी जीरो ले सकता है. सो दिस इज हाउ यू गॉट 5 डिफरेंट पॉसिबिलिटी फ्रॉम केस 1. अब केस 2 से क्या हो जाएगा बोलो? क्या 15 तक जा सकते? देखो मैक्सिमम 18 तक जा सकता है सम ऑफ डिजिट्स, उससे ज़्यादा नहीं. सो 15 जा सकता है. कैसे जाएगा? अच्छा, मिनिमम A और मैक्सिमम B क्या हो सकता है 15 के लिए? अगर हमने मिनिमम लिया 5 नहीं 6 लिया तो 6 प्लस 9 हो सकता है. 6 प्लस 9 इज वन पॉसिबिलिटी. ऑर्डर्ड पेयर है ना. अभी यहाँ से एक बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 7. ये कितना हो जाएगा? एक कम करना पड़ेगा 8. ये भी हो सकता है. अच्छा, ये एक और बढ़ा दो 8, ये 9, ऐसा भी लिख, सॉरी, या
एक कम करना भाई, बढ़ाना नहीं। हाँ, 8 + 7 15 ये भी ले सकता है। एक और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ा दो, सो मतलब ए का वैल्यू बढ़ा दो तो ये 9 ले सकता है, ये 6 भी ले सकता है, राइट। सो यू गॉट 4 पेयर्स फ्रॉम हियर, यू गॉट 4 पेयर्स फ्रॉम हियर। तो टोटल कितने पेयर पॉसिबल है ऑर्डर्ड पेयर? 5 फ्रॉम हियर फर्स्ट केस एंड 4 फ्रॉम हियर सेकेंड केस। सो टोटल 9 पेयर्स आर पॉसिबल, ये आपका आंसर होगा। ओके, है ना? इंटरेस्टिंग तो है, बोलो इंटरेस्टिंग तो है। अब ये आप ना एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत बुरा क्वेश्चन नहीं, बड़े सुंदर क्वेश्चन बनाया था हम लोगों ने। क्वेश्चन बड़ा सही है ना, आप इसको एक बार और ट्राई करना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ओके, सो दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अदरवाइज आप इसको एक्चुअली 11 से डिवाइड करके सॉल्व कर नहीं पाओगे। यू नीड टू नो डिविजिबिलिटी ऑफ 11। Clear? Let's see what more we have. Oh, great. You got another example. You can take a pause. यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखो and try to solve by yourself before you watch the explanation. चलो शुरू करते हैं। Both inclusive and divisible by 4 and 5 both of them. 4 and 5 दोनों से वो divisible हो। Okay? अगर आप मेरा अलजेब्रा का कोर्स करते हुए आ रहे हैं, सो वहाँ पे हमने कुछ सीखा था इन अलजेब्रा। हमने सीखा था प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखा था हम लोगों ने प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था। सो वी हैव यूज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो नहीं किया तो कर लेना, लेक्चर नंबर 1 and 2 ऑफ प्रोग्रेशन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। देखो, व्हेन यू गो फर्दर इनटू नेक्स्ट चैप्टर मैं ये मान के चलूंगा आपने पिछले चैप्टर किए हैं। ओके, तो हमेशा लेक्चर्स का सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करना है अपने को, राइट। खैर, डिविजिबल बाय 4 एंड 5 बोथ ऑफ देम। तो अगर कोई नंबर 4 एज वेल एज 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 20। ओके, अच्छा 20 का केस क्या है? 20 का केस क्या है? एवरी 20th नंबर विल बी डिविजिबल बाय 20। मतलब पहला अगर 100 है, इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव, सो नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11 कौन होगा? सॉरी, डिविजिबल बाय 20 कौन होगा? 120। नेक्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 कौन होगा? 140। और ये चलता जाएगा। लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 20 क्लोजर टू 999 विल बी 980। विल बी व्हाट? 980 विल बी व्हाट? 980। क्लियर है? इजी है, डिफिकल्ट? ठीक है। अब यहां पे आप लगाओगे कि nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म इज व्हाट? फर्स्ट टर्म प्लस n-1। हमें n की वैल्यू निकालना है इनटू कॉमन डिफरेंस। ओके, ये प्रोग्रेशन से हमने निकाला है। आप बिना फॉर्मूले के भी यही फॉर्मूला लगाओगे, बट ये आना चाहिए अपने को। ओके, प्रोग्रेशन का पता होना चाहिए। दिस बिकम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर सेम, देन दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट्स द केस ओवर हियर। लास्ट टर्म वी गॉट इज 980. So last term is we got what? 980. First term we have is what? 100. N number of terms we need to find out. Common difference is 20 we got, right? Now if you take the difference here, this is how much? 880. Now 880, चाहो तो आप ये step लिख लो, but you guys are smart now. You don't need me to write this extra step, right? अरे question number 5 बाद में देखते हैं तुमको। हाँ, now if you divide this by 20, what you get is 44। सो n-1 कितना हो गया? 44। तो बोलो n कितना हो गया? 45, राइट। सो n कितना हो गया? 45। दैट मीन्स देयर आर 45 नंबर्स फ्रॉम 100 to 999 which are divisible by 4 as well as 5. It's not 4 or 5, it is 4 and 5, right? आई होप। अरे ये तो मस्त क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 100 to 999 which are divisible by 4 or 5? 4 और 5, और लिया है इस बार। ट्राई दिस आउट, बताना मुझे आंसर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही भारी, इट लुक्स लाइक क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन। 10 का पावर है 100, इससे बड़ा सा नंबर। जैसे 10 स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर कितना होता है? 100।
10 क्यूब कितना होता है बोलो? 1000. 10⁴ कितना होता है तो बोलो? 10,000. सो ऐसे ही आपको मिला कौन? जाते जाते रास्ते में आपको एक नंबर मिला, वो हुआ 10⁻100. इससे एक बड़ा सा नंबर, वो बड़ा सा नंबर हुआ तो बड़ा सा नंबर, दिखने में बहुत इजी लगेगा, नंबर इजी है. नंबर क्या है? यू गॉट 1 and 10⁻4, you got 4 zeros. 10⁻100, you will get 100 zeros. 0 0 0 0 0 लगाते जाओ जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है. Now we need to see if that number divided by 9, what is the remainder? ये क्या बात, ये इससे इजी क्वेश्चन नहीं है. इससे इजी क्वेश्चन पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में आपने नहीं देखा होगा. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट? फाइंडिंग द सम ऑफ डिजिट इन सच केस इज इजीएस्ट. वन, पहला डिजिट मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 है, उसके अलावा सब 0 है. सम क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? आप 10⁻2 लो या 10⁻100 लो, बोलो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? आप 10⁻2 लो, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? आप 10⁻2 लो, 10⁻3 लो, 10⁻4 लो, इन सारे केसेस में सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 1. सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 1. Okay. If sum of digits is 1, is this number divisible by 9? No. But what if this number divided by 9, what will be the remainder? 1 itself. We don't have to solve. सीखा था ना? Divisibility rule of 9 can also help you to find the remainder. So 1 itself is smaller than 9. You don't have to divide anymore. 1 itself will be remainder. 1 itself is remainder. यही आपका आंसर है. कैसा लगा? देखें और अरे हो गया हो गया हो गया हो गया. काफ़ी लेंथी था, बट ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई यूज दिस डिविजिबिलिटी रूल इन मेनी क्वेश्चंस फॉर शॉर्टकट्स. या सो कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. या ऑल राइट, सो दिस इज इट इन टुडेज लेक्चर. माय नेम इज श्याम मानव, साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है HCF एंड LCM पे. उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फाइंड आउट कैसे करना है, कुछ शॉर्टकट भी सीखेंगे. So stay tuned and be consistent the way you are right now. I will see you again in the next video. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.